बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 23rd लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमने चैप्टर 19 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स belongs to that class of organic compounds which contain the carbonyl group C double bond O, and this C double bond O is unsaturated. So addition can take place. So this addition may be ester catalyzed or it might be base catalyzed. So this addition is the nucleophilic addition. जैसे हमने पढ़ा था कि nucleophile will come over the carbon because this is electrophilic carbon and these two electrons will move toward the oxygen और इस पर negative charge आ जाता है and then this negative charge pick up the proton and we get the product. This is the addition product. So double bond is changed to single bond and with the addition of nucleophile as well as the proton. So this is nucleophilic addition and this nucleophilic addition might be base catalyzed as well as the acid catalyzed. तो आज के लेक्चर में हम बहुत ही important lectures, बहुत ही important topics of this chapter discuss करेंगे, which one of them is the aldol condensations and the second will be the Cannizzaro reactions. And the third very important topic, that is the addition of ammonia derivatives, which are generally called as Schiff bases or the amines. So जो पहले दो reactions हैं, they are the base catalyzed, और the third one होगा, this is the acid catalyzed. So first move to the aldol condensation reaction. तो aldol condensation reaction से पहले ज़रा हम बात करते हैं अबाउट कंडेंसेशन। तो जैसे नाम से ज़ाहिर है कंडेंसेशन मीन दो तीन मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ जाना, कंडेंस हो जाना। सो द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स combine to form a new compound with or without elimination of small molecule like water or ammonia, they are called as condensation reaction. तो इनमें से बहुत important reaction है that is aldol condensation. और ये aldol condensation reaction जो है that is for those aldehydes and ketones having alpha hydrogen. So aldol condensation is a reaction in which two molecules of same or different carbonyl compound containing alpha hydrogen, तो ये alpha hydrogen बहुत important है, alpha hydrogen combine together to form aldol or the ketone, which usually loses water molecules and we get the unsaturated aldehydes or the ketones. So alpha hydrogen, the hydrogen attached to the carbon atom next to the carbonyl group. तो aldol condensation हम कहते हैं this is for those aldehydes and ketones having alpha hydrogen, they condense together to form beta hydroxy aldehydes or the ketones. So if this is aldehyde that is called as the aldols और अगर ये ketone होगा तो that's called as the ketones. तो इसकी जनरल एग्जांपल में यहाँ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, ये एथेनॉल है। ये भी अगर मैं बात करूँ तो CH3 CH ये भी एथेनॉल है। तो दो मॉलिक्यूल दोनों सिमिलर है, सो दे आर गोइंग टू कंडेंस। तो सबसे पहले हमने ये बात की कि aldehydes and ketones having alpha hydrogen. So this carbon which attached to the carbonyl group that is called as the alpha carbon, and these three hydrogens which are attached with the alpha carbon they are called as alpha hydrogen. तो इस मॉलिक्यूल के पास भी तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इस मॉलिक्यूल के पास भी तीन अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल में कंडेंस होगा, ऐड होगा, और ये जो डबल बॉन्ड है इट विल चेंज टू द सिंगल बॉन्ड। अब होगा क्या है इसमें कि इनमें से जो तीनों जो हाइड्रोजन है ना दे आर स्लाइटली एसिडिक बिकॉज ऑफ द विदड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ दिस कार्बोनिल। तो इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। उसकी वजह से ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ये स्लाइटली एसिडिक हो जाते हैं। एसिडिक मीन बेस की मौजूदगी में इनको रिमूव किया जा सकता है। तो अब अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात करूं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस होगा क्या, सिंपल हम इसको याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन
जैसे फॉर एग्जांपल ये अल्फा हाइड्रोजन, किसी एक की बात करते हैं, दिस अल्फा हाइड्रोजन गोज टू द ऑक्सीजन एंड दिस रिमेनिंग कार्बन गोज टू दिस कार्बन एंड डबल बॉन्ड इज चेंज टू द सिंगल बॉन्ड। हमें पता है कि इसमें एडिशन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और डबल बॉन्ड जो है ये सिंगल बॉन्ड में चेंज जाता है। तो प्रोडक्ट ये बनेगी CH3 COH CH, और यहाँ पीछे रहेगा CH2 CH2 CHO, ये चीज बन जाएगी। तो इसमें अगर मैं गौर करूं तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन के ऊपर OH लग गया, तो इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, और जनरली इसको हम अल्डोल कहेंगे। अल्डोल मीन इट दे हैज द अल्डिहाइड ग्रुप एज वेल एज द अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि ये 4 कार्बन मेंबर है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, जो कि 4 कार्बन से, सो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। तो इसको हम बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि अल्डिहाइड्स दे हैव अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन जो है ये जो ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन में, और जो कार्बन है ये इस कार्बन में ऐड हो जाएगा और डबल बॉन्ड में चेंज टू द सिंगल बॉन्ड, इसको हम अल्डोल कह सकते हैं। और दूसरी हमने बात की कि ऑन हीटिंग अल्डोल लूजेस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। तो जैसे अब ये प्रोडक्ट दोबारा बना रहा हूँ, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहाँ पे OH है, इस कार्बन के पास H है, अगर हम हीट करें यहाँ से वाटर रिमूव हो जाए, वो भी करता है डबल बॉन्ड, तो इसको हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। तो इसका खास नाम है इस मॉलिक्यूल को, उसको बोलते हैं क्रोटन अल्डिहाइड। तो अमूमन पेपर में आ जाता है हाउ यू कन्वर्ट एसेटल्डिहाइड, या इसका नाम एथेनॉल है, इनटू क्रोटन अल्डिहाइड। तो आपने ये रिएक्शन उसमें लिखना होगा। तो इसके मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं अल्डोल कंडेंसेशन की। सो अल्डोल कंडेंसेशन कैन अकर बिटवीन 2 अल्डिहाइड्स आइडेंटिकल और डिफरेंट। अगर हम एक फ्लास्क में हम एक ही टाइप के अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लें, तो 2 अल्डिहाइड सिमिलर आपस में ऐड हो सकते हैं, या 2 अल्डिहाइड डिफरेंट भी हो सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम अगर एक रिएक्शन फ्लास्क के अंदर अल्डिहाइड भी ऐड कर दें, कीटोन भी ऐड कर दें, तो आपस में ऐड हो सकते हैं। बिटवीन 2 कीटोन्स दे मे बी सिमिलर और दे मे बी डिफरेंट। तो पहले जैसे ये एग्जांपल लिखिए, तो कंडेंसेशन बिटवीन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, तो हम एक फ्लास्क के अंदर अल्डिहाइड भी ऐड कर देते हैं और कीटोन भी ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनती है। लेकिन यहाँ पर हम एक लिखेंगे, तो जो अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होता है इसमें इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कार्बोनिल की एज कम्पेयर टू कीटोन, जो कि इसके साथ यहाँ पर H लगा हुआ है, तो इस C डबल बॉन्ड O में एडिशन आसानी से हो सकती है। तो इसलिए जो हम कह सकते हैं जो कीटोन है ये अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में ऐड होगा। तो ये अल्फा हाइड्रोकार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो कोई एक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पर ऑक्सीजन में मैं ऐड कर लूँ, तो ये कार्बन इस कार्बन में ऐड हो जाएगा और डबल बॉन्ड विल चेंज टू द सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगी CH3 C सिंगल बॉन्ड OH, CH ऑलरेडी H एक साथ मौजूद है, और साथ ऐड होगा CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो इसको हम कीटोल कहते हैं, क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रही है। इसका आईयूपीएक नेम बनेगा 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेन ऑन, क्योंकि यहाँ से नंबर करेंगे नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 एंड 5। सो 4 नंबर पे OH है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेन ऑन। अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ आ जाते हैं। तो जैसे मैंने बात की पहले हमें कि बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक कंडीशन में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नंबर सेकंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड मेकिंग द नेगेटिव आयन alkoxide and the third is the pickup of this proton to make the product। तो सबसे पहले हम बेस ऐड करते हैं, एक्वस बेस। तो यहाँ पर हम ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये दे आर स्लाइटली एसिडिक, तो इनमें से कोई एक हाइड्रोजन को ये पिक कर लेगा, तो इस कार्बन पे दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो वाटर प्लस दिस प्रोडक्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज द कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन मींस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग ऑन द अनदर इलेक्ट्रोफाइल। अब इस मॉलिक्यूल सेकंड एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होगा, और चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल है तो इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे।
तो इसको हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। और लास्ट स्टेप हमें पता है कि जो नेगेटिव आयन है ये प्रोटॉन को पिक करेगा। नाउ इट विल अटैक विद द react with a water molecule और प्रोटॉन को pick कर लेगा and we will get the product and the hydroxide and which is the catalyst. तो base catalyzed nucleophilic addition में first of all making of nucleophile, number second attack of nucleophile and number third is the pickup of the proton. अब हम आते हैं एक और रिएक्शन की तरफ। ये उन अल्डिहाइड्स की है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आपने पिछले रिएक्शन की बात की है, एल्डोल कंडेंसेशन इज फॉर दोज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, बट दिस इज फॉर दोज अल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या करते हैं? दे शो रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज Kenny-Zorod reaction and this is called as disproportionation reaction, means self-oxidation reaction. Two molecules of aldehydes are involved. क्या मतलब इसका कि जो अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, एक अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है और दूसरे अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल की रिडक्शन होती है। और अल्डिहाइड की अगर ऑक्सीडेशन हो तो बनता है एसिड और अगर रिडक्शन हो तो बनता है अल्कोहल। इट मींस one molecule of aldehyde will convert into acid and the second molecule will convert into the alcohol. In the presence of base, हम strong base use करते हैं, क्योंकि base होगा तो we will get the salt of acid. तो ऐसे reaction which are the self oxidation reduction, they are called as disproportionation reaction. So one molecule is reduced into corresponding alcohol and the other is oxidized into the acid in the salt form. The reaction carried out with 50% aqueous solution of sodium hydroxide at room temperature. जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड है तो इनके पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है तो इसलिए अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो इसमें हम रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, तो एक उसकी रिडक्शन हो गई, तो रिडक्शन एक कार्बन मीन मेथनॉल बन गया और एक कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है इसकी, so we will get the formic acid, तो salt of formic acid। दूसरी एग्जांपल है बेंजल्डिहाइड, तो ये अल्फा कार्बन है और हमें मालूम है कि इस कार्बन के पास अब हाइड्रोजन नहीं है। इट मीन दिस अल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड विल अंडरगो Kenny-Zorod रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये शो नहीं करेगा। तो इसमें से एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो बेंजोइक एसिड का साल्ट बन जाएगा और दूसरा बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये जिसकी दो एग्जांपल्स दी हुई है। इसके अगर मैकेनिज्म की तरफ आ जाए, सो फर्स्ट दिस इज द वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, बेस हाइड्रोक्साइड आयन, इसका अटैक कार्बन पे होगा एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड द ऑक्सीजन। तो पहले ये एनाइन बन गया। नेक्स्ट स्टेप में these two electron of the oxygen will come back and now this hydrogen will leave with a pair of electron। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास होंगे, that is called as a hydride ion and now this hydride ion will act as a nucleophile। तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। तो अब यहाँ पर होगा क्या, CH2 और एक He हो जाएगा CH3O नेगेटिव मेथॉक्साइड आयन और जो रिमेनिंग बनेगी H C डबल बॉन्ड O एंड OH एसिड बन गया। और चूंकि ये मेथॉक्साइड है तो इस एसिड से ये H को पिक कर लेगा और हमारे पास मेथनॉल बन जाएगा और साथ सॉल्ट। तो ये हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये सोडियम फॉर्मेट का साल्ट बन जाता है। तो इसके अंदर जो हमारे पास first attack of this base on this carbon we make the anion, then the hydride shift। तो इस मैकेनिज्म में ये हाइड्राइड शिफ्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो H का अटैक हो रहा है तो इसमें प्रोटॉन नहीं है, दिस इज हाइड्राइड मीन ये जो H अटैक कर रहा है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सो दैट विल बी H नेगेटिव, इसको हम हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। थर्ड हमारे पास बहुत अहम रिएक्शन, दिस इज द एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, ये इसको बोलते हैं शिफ्ट बेसिस। तो जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम शिफ्ट बेसिस कहते हैं या इमीन कहते होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें मालूम है कि अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, तो वहां से अगर एक H हट के वहां पे कोई ग्रुप हम लगा दो तो इसमें मैं कहता हूँ अमोनिया डेरिवेटिव। G मीन एनी ग्रुप, तो कुछ भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारा कंसर्न इस NH2 के साथ। तो यहाँ पर लोन पेयर है, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। मींस इन सिंपल वर्ड्स
ये NH2 है, यहाँ से एक H ऑक्सीजन के पास आ गया और बाकी पार्ट जो है इस कार्बन के पास आके ऐड हो गया, तो ये एडिशन होगी। सो OH विद एडिशन ऑफ दिस NHG। अगला स्टेप में जैसे हमने बात की थी कि दे अंडरगो डिहाइड्रेशन, तो जब यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा तो C डबल बॉन्ड N। सो दिस इज द कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो पहले हमारे पास ये एडिशन हो रही है, अब वहां से वाटर रिमूव हो रहा है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट बनी है दैट इज कॉल्ड एज द शिफ्ट बेस एंड दिस इज कॉल्ड द इमीन, C डबल बॉन्ड N, दिस इज कॉल्ड एज द इमीन फंक्शनल ग्रुप। सो aldehydes and ketones react with ammonia derivative GNH2, मीन G कोई भी ग्रुप हो सकता है लेकिन इसके साथ NH2 का होना जरूरी है, to form a compound containing the group C double bond N, single bond G. The reaction is known as condensation reaction or addition elimination reaction because water is lost after addition occurs. तो जनरल रिएक्शन हमने ये बात कर दी। अब सबसे अहम बात है कि ये G क्या हो सकता है। अगर यहाँ पर GOH हो तो उसका खास नाम है, अभी हम बात करेंगे, उसका नाम है हाइड्रोक्सिलमीन। अगर यहाँ GNH2 हो तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजीन। अगर यहाँ पर NHC65 हो उसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन। अगर N2 ग्रुप लगा हो या NH2 ग्रुप लगा हो इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। तो ये सारे G वेरी कर सकता है बट NH2 रिमेन्स द सेम। तो सब के अंदर ये प्रोडक्ट बनेगी, C डबल बॉन्ड N का बॉन्ड बनेगा, सिर्फ इसमें ग्रुप चेंज होता जाएगा। अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस इसको हम दोबारा कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कि ये हमारे पास अल्डिहाइड है एंड नो दिस इज द NH2 एंड दिस इज द G मीन OH, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलमीन। तो C डबल बॉन्ड N बन जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर, तो यहाँ से H2O रिमूवल ऑफ वाटर और C डबल बॉन्ड N। तो इस प्रोडक्ट को कहते हैं ऑक्साइन। अगर हम हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करवाएं, so this is called shift base, this is the amine, but its exact name, इसका खास जो नाम होगा उसको हम ऑक्साइन बोलते हैं। इस किस्म की मोइटी को हम ऑक्साइन बोलेंगे। तो चूंकि ये एथेनॉल है तो मैं कहूँगा एथेनॉल ऑक्साइन। अच्छा कुछ ये कीटोन है तो प्रोपानोन है तो इसको कहेंगे प्रोपानोन ऑक्साइन। तो हम कह सकते हैं कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू मेक द ऑक्साइन। इसी तरह हमारे पास ये NH2 है, ये NH है और ये C6H5 है, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन। तो फिनाइल हाइड्रोजीन जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर होगा और C डबल बॉन्ड N बनेगा, इसको कहते हैं फिनाइल हाइड्रोजोन। और चूंकि ये एथेनॉल है तो हम कहेंगे एथेनॉल फिनाइल हाइड्रोजोन। प्रोपानोन है तो प्रोडक्ट बनेगी प्रोपानोन फिनाइल हाइड्रोजोन प्लस वाटर। सिमिलरली NH2 इसको हम कहते हैं हाइड्रोजीन। तो प्रोडक्ट का जो नाम होगा जब C डबल बॉन्ड N बनेगा तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोजोन। और चूंकि ये अल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है या एथेनॉल है, तो मैं कहूँगा एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन। और ये कीटोन है, एसीटोन है या प्रोपानोन है, तो मैं कहूँगा एसीटोन हाइड्रोजोन। तो सब में C डबल बॉन्ड N का बॉन्ड बन रहा है, सिर्फ ग्रुप की तब्दीली हो रही है। इसी तरह यहाँ पर NH2 के साथ ये ग्रुप अटैच है, इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये 2 नंबर है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो 2,4 दिस इज डाइनाइट्रो एंड दिस इज द फिनाइल और दिस इज द हाइड्रोजीन। सो दिस इज कॉल्ड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड N और साथ ही बाकी पार्ट उसी तरह अटैच हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। तो ये अल्डिहाइड अगर होगा तो मैं कहूँगा अल्डिहाइड मीन, अगर ये एथेनॉल होगा तो मैं कहूँगा एथेनॉल 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। तो ये हमारे पास जो एक स्पेशल टेस्ट होता है टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अल्डिहाइड्स एज वेल एज द कीटोन्स, क्योंकि अगर हम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिएक्शन हम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, जिसको हम कहते हैं 2,4 DNPH डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, तो उससे हमारे पास येलो कलर के सॉलिड हासिल होता है। तो उसका बनना ये शो करता है कि आवर स्टार्टिंग मटेरियल और द रिएक्टिंग मटेरियल दैट इज अल्डिहाइड और द कीटोन्स। तो ये एक टेस्ट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अल्डिहाइड एज वेल एज द कीटोन्स।
अब इसके मैकेनिज्म की तरफ आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूंकि ये एसिड कैटालाइज्ड है तो इसलिए हम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड मीन H पॉजिटिव। सो फर्स्ट प्रोटोनेशन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक लोन पे है जो ऑक्सीजन का, इट विल पिक अप द प्रोटॉन, तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसकी सेकंड फॉर्म ये बन सकती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाए तो इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा, मीन कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ। देन दिस इज NH2G, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन पे। अब चूंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन जाएंगे तो इसके लिए यहाँ पे N पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अडक्ट। अब यहाँ से एक प्रोटॉन रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे बन जाएगा CNHNG, मीन यहाँ पे N के 3 बॉन्ड पूरे हो गए। अगेन प्रोटोनेशन, तो यहाँ जो ऑक्सीजन है इट विल पिक अप द प्रोटॉन एंड नो इट विल कन्वर्ट OH2, तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बनेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आखिरी स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज रिमूवल ऑफ वाटर, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, मीन C डबल बॉन्ड N और वाटर के रिमूवल होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीजें बन रही हैं, एक प्रोटॉन रिमूव हुआ, वाटर रिमूव हुआ एंड C डबल बॉन्ड N, तो ये हमारे पास इमीन फंक्शनलिटी बन रही है। तो यहाँ पर कार्बन के 5 बॉन्ड है, यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं होगा, सो C डबल बॉन्ड N, सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो इसके अंदर फर्स्ट प्रोटोनेशन है, अटैक ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन है, और एट द एंड प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ वाटर एंड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मैं आज समरी की बात करूं तो आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इस चैप्टर के, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़रोस रिएक्शन एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमें सेंड करें, हम डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक्स।